Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great Vaheguru and great God, let us start. Today's topic is, basically in the last lecture, we are doing the force oscillator. We are doing the force oscillator. So आज हम करेंगे resonance part. We will do the resonance part. Okay. Resonance. This is very very important, resonance. Okay. See, we have derived a amplitude of a force oscillator in steady state. Okay, amplitude of force oscillator in steady state is given by, Hanji, what's the formula? What's the formula? What's the formula? So करना पास. What's the formula? A naught is equal to F naught by omega Zm. Modulus of Zm. What is Zm? Zm is called a mechanical impedance. What is Zm? That is called a mechanical impedance. Okay. तो इसमें दो पार्ट थे. एक था R square plus m omega minus k by omega square. Okay. So what is A naught is equal to F naught by omega. Okay, what is Zm? Zm is equal to R square plus m omega minus k by omega whole square. Okay. Modulus means real part square plus imaginary part square, that is square root. यही था ना? समझ आया कि नहीं आया? Okay, this is called the inertial reactance. This is called a reactance part. This is also a reactance part. This is due to the friction. समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था आपको. So both are the reactance part. So now we draw the graph of A naught versus omega. A naught versus omega. Graph of A naught versus omega. Okay, what is A naught? A naught is called amplitude. A naught is called amplitude. See, resonance means maximum amplitude. Resonance means maximum amplitude. Okay, so now this is A naught. This is omega, different frequency. So this is the first graph. This is a graph at some another frequency. Okay, and let us say this is the amplitude. This is the maximum amplitude. See, this is also called a maximum amplitude. This is also called a maximum amplitude. But here frequency is different. Okay, so both are the graph for the different frequencies. Let us say this is also called E naught maximum. This is also called the E naught maximum. And this is for the frequency R. This is for the R1. And this is for the R2. Okay, we have changed the value. This is for R1, this is for the R2, and this frequency is called omega prime. And this omega prime is called a resonance frequency. This omega prime is called a resonance frequency. What is omega prime? Omega prime is called a resonance frequency. And what is the resonance? What is the resonance? Resonance means when we are getting a maximum amplitude. When we get a maximum amplitude. Resonance means a maximum amplitude. Maximum amplitude. समझ आया राजन? So this is for the different R1 and this is for the different R. This is for the R1, this is for the R2. But see, frequency is the resonance frequency is omega prime. Okay. अब इसके तीन केसेस बनेंगे. This is also called a frequency response curve. This is also called a frequency response curve. Frequency response curve. This is also called a frequency response curve of a force oscillator.
ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ऑफ अ फोर्स ऑसिलेटर। Force oscillator. Okay. Now see, the formula is A naught is equal to F naught by omega Z. Okay. This is the formula of the amplitude, and this A naught is equal to F naught by omega R square plus M omega minus K by omega square root. Now let us discuss the first case when the frequency is very low. When the frequency is very low. Frequency low means omega is tending to 0. Omega किसको approach कर रहा है? 0 को approach. Case 1 at low frequency. At low frequency का मतलब क्या हुआ? What's the meaning of low frequency? Omega is low means omega is tending to 0 but not equal to 0. Tending to 0 means कम है but it is not equal to 0. Omega tending to 0 means omega not equal to 0. I mean to say value is very small. That is very small. See, when omega is tending to 0, this part will become very large. This part will become very large, and this part will almost a very small part. Okay, are you getting my point? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी दिस omega tending to 0 and k by omega tending to a very large value, very large. Okay. See, when this will be very large, it means then this r square and omega square can be neglected because it has very small value. So r square and m omega can be neglected. Neglected as compared to k by omega. Because this is very large term. See, this is very large term. This is small term. This is very small term. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड करना हो कि 10 लाख प्लस 1 प्लस 1, व्हाट्स द आंसर? वेरी लार्ज नंबर प्लस स्मॉल नंबर. 10 लाख प्लस 0.1 प्लस 0.1, व्हाट्स द आंसर? इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 लाख. आई गेट योर पॉइंट. So what's the answer? A naught is equal to C. This F naught is equal to omega. This is 0. This part will neglected 0. Plus this part will also neglected. You can take 0. Minus only K by omega will be there. What's the answer? F naught by omega. Anji. This then it will come K by omega square. This will cancel. What is the answer? F naught by omega into k by omega. Okay friends, omega cancel. So A naught is equal to F naught by k for low frequency. For low frequency, that is omega tending to 0. For low frequency. It means amplitude, see, in this part omega is not there. Omega is not there. It means amplitude is independent of frequency for low frequency. For this case, this implies amplitude is this A naught, amplitude A naught is independent of frequency. You get the point? Because omega is not there. So for the small frequency, when omega tending to 0, this means that this amplitude becomes totally independent. Now let us discuss the Pellet-Arrangement idea.
So this will be the Z. This will be the f naught by k. This will be the. Here frequency is small. Frequency low means we are near by. हम किसके पास है? 0 के पास है. We are near by 0. See, in this direction frequency is increasing. Frequency is increasing. Small frequency means we are here. हम इस एरिया के पास है. तो यहाँ पे कितना वैल्यू है? f naught by. ठीक है? समझाया आपको? आप दूसरा केस लेते हैं जब ओमेगा क्या है? इंफिनिटी, वेरी वेरी लार्ज. जब इंफिनिटी मतलब हम इस डायरेक्शन में होंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा. केस 2, केस 2 when ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी. आप लोगों ने किया ये उतारने पहले उतारना. स्टार्ट करूं मैं? देखिए जब ओमेगा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, व्हेन ओमेगा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये वाला वेक्टर क्या बन गया? समथिंग अपॉन इंफिनिटी. के अपॉन इंफिनिटी क्या बन गया? 0. के अपॉन इंफिनिटी क्या बन गया? 0. बिकॉज समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0. सो के बाय इंफिनिटी 0. ओके, इट मींस दिस फैक्टर एंड r स्क्वायर कैन बी रिलेटेड. Okay, so r square and k by omega क्या रखते हैं? Can be neglected. ठीक है, can be neglected as compared to as compared to omega, as compared to ओमेगा. बिकॉज ओमेगा बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब ये टर्म बड़ी होगी, ये टर्म छोटी होगी, और ये टर्म वैसी छोटी है. ठीक है, तो क्या आया? तो आंसर हमारा क्या है? पी नॉट क्या है? एफ नॉट बाई ओमेगा है बेटा. आर की जगह मान ले, आर को की जगह 0, यू कैन नेग्लेक्ट 0 प्लस एम ओमेगा माइनस 0 का स्क्वायर 1/. इसका कितना आंसर है बेटा? स्क्वायर के साथ 1/2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. व्हाट्स आंसर? एफ नॉट बाय ओमेगा इनटू एम ओमेगा. ठीक है, उसका फाइनल आंसर एफ नॉट बाय एम ओमेगा. अब देखिए इसमें ओमेगा आ रहा है, इसमें ओमेगा नहीं आ रहा. तो इसका मतलब ये देखो, इसमें कैसे आ रहा है? स्क्वायर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर. इसका मतलब अगर ओमेगा ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम. और अगर ये कम होगा तो वो क्या होगा? ज्यादा. और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि और भी ज्यादा कम होगा. अगर का पॉइंट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड क्या करेगा? फास्टली क्या करेगा? डिके. क्या करेगा? फास्टली डिके. बिकॉज स्क्वायर है. क्या है? स्क्वायर. जैसे मैं आपको कहूँ 1/2 का आंसर कितना आया? 0.5. अब इसका स्क्वायर कर दूं, 1/2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 और 0.25. तो 0.25 तो और कम हो गया 0.5 से. तो इसका मतलब पहले एम्पलीट्यूड कितना आ रहा था? 0.5. अब कितना आ रहा है? 0.25. तो एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है? फास्टली डिक्रीज कर रहा है. क्या कर रहा है? फास्टली डिक्रीज. तो लिखिएगा लाइन, लिखिए बेटा लाइन लिखिए. ए नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर. ये कब है बेटा? फॉर ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी. भाई इंफिनिटी का मतलब क्या है? इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि इंफिनिटी हो जाएगा. इंफिनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफिनिटी?
It simply means that omega possesses very large value. Omega possesses very large value. Okay. तो क्या आंसर आएगा तो बताइए, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? Amplitude decreases fast. So please write amplitude decreases fastly. लिख देगा मैंने, सही लिखा? Decreases fastly with frequency at higher value. At a higher value. तो आपको समझ आया बेटा ये चीज? समझ आया? क्या समझ आया? कि जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है तो एम्पलीट्यूड क्या है? फास्टली डिके करता है. एम्पलीट्यूड क्या करता है? फास्टली. ओके. For the intelligent students, see this amplitude is not a function of frequency. For the smaller value of the frequency and the amplitude, see in this part for higher frequency omega is there and the square of omega is there. It means amplitude decreases very fastly with frequency and a higher value. जल्दी समझ आ रहा ना? Okay. Now you want to calculate this value omega prime. Okay. So how we can calculate the maximum value of amplitude? देखो जब भी कोई चीज मैक्सिमम होती है जब मिनिमम होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है? तो वो जब भी कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो. क्या होता है? जीरो. ठीक है. फॉर एनी मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटी इट्स डेरिवेटिव इज ऑलवेज टेकन एज अ जीरो. ओके. ये पता कि नहीं पता आपको? अब देखिए मुझे एम्पलीट्यूड क्या चाहिए? मैक्सिमम. मुझे एम्पलीट्यूड क्या चाहिए? मैक्सिमम. एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? जब ये चीज क्या होगी? मिनिमम. जब ये चीज क्या होगी? समझाएगी नहीं आएगी? जब ओमेगा इंटू जेड मिनिमम होगा तभी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा ना, और जब ये मैक्सिमम होगा तो ए नॉट क्या होगा? मिनिमम होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अच्छा, हमें ये मैक्सिमम चाहिए तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम. और किसी भी मिनिमम क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो. क्या होता है? तो देखिए हेडिंग बनाइए, मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड. हेडिंग बनाइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड. हाँ जी, कैसे लिखेंगे इसको? राजू कैसे लिखेंगे? सी कैसे लिखेंगे? ए नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट बाई ओमेगा जेड. लिखेंगे ए नॉट विल बी मैक्सिमम. ऐसे लिखेंगे ना? ए नॉट विल बी मैक्सिमम. कब होगा बेटा? कब? व्हेन denominator term omega zm will be maximum or minimum? और अगर कोई भी चीज मिनिमम हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? वो चीज होती है कांस्टेंट. वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट. और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो. तो इट मींस दिस इंप्लाइज, इसका डेरिवेटिव लीजिए फ्रीक्वेंसी के साथ ओमेगा जेड. तो ये क्या होगा? जीरो. समझ आया बेटा? इसी समझ आई आपको? ये मैंने क्या जीरो की लिया इसका डेरिवेटिव? क्यों? ये मिनिमम बनेगी, मिनिमम मतलब ये कांस्टेंट बनेगी. अब ये कांस्टेंट बनेगी तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव with respect to frequency. डेरिवेटिव with respect to frequency. तो लीजिए इसका डेरिवेटिव लीजिए. हाँ जी, लीजिए इसको सॉल्व. d by d ओमेगा. ओमेगा व्हाट इज zm? zm क्या है? ये है ना r स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस k by ओमेगा का स्क्वायर 1/2. ठीक है? ऐसे आएगा ना बेटा? ऐसे आएगा? ऐसे आएगा? इसको ऐसे लिख लीजिए.
ठीक है। अब ऐसा कीजिए कि ओमेगा को अंदर ले लीजिए, ओमेगा को क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट के जब अंदर ओमेगा जाएगा तो ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आंसर है बेटा मेरा आया डी बाई डी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा माइनस के बाई ओमेगा का स्क्वायर पूरे का 1/2। बेटा मैं गलत तो नहीं कर रहा, देखना एक बार। मैंने ओमेगा को स्क्वायर रूट के अंदर लिया तो ओमेगा का बन गया ओमेगा स्क्वायर। जो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करना ना, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू दिस वन। ठीक है, अब इस चीज का एलसीएम लीजिए। ये क्या बन गया, ये बन गया एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के। क्या बन गया, एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के। ये बन गया एम ओमेगा, सॉरी पहले ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के। मैंने अलग अलग स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, अलग अलग। डाउट, इस ओमेगा स्क्वायर के साथ ये ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास बेटा क्या आंसर आया, मेरे पास आया डी बाई डी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के। यहाँ लिखना पड़ेगा डी बाई डी ओमेगा स्पेस का में ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस और ये एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0। ये तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। ये बन गया u की पावर n। क्या बन गया, u की पावर n। कौन सा फॉर्मूला u की पावर n क्या होता है, जब मैं डी बाई डी एक्स निकालूं तो u की n का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इक्वल -1 इनटू du बाय dx। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इसको रब कर दूं बेटा मैं, इसको भी कर दूं नीचे तक। अब बेटा इस पे फॉर्मूला लगाइए। ये सारा क्या बन गया, u, और ये क्या बन गया, n। ये बन गया ना। तो क्या फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बना 1/2 ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, ओके, इनटू एन यू, ये यू है ना, एन माइनस 1 एन यू एन माइनस 1 इनटू क्या आएगा आगे, क्या आएगा, डी बाई डी ओमेगा, डी बाई डी ओमेगा इस सारे का फिर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ओके, ठीक है। ओके, एन यू एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी ओमेगा इंटू यू, ये यू है हमारा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के का, दिस इज यू एंड दिस इज एन। आपको सही है, आसान, ठीक है। क्या आंसर आया 1/2, ये 1/2 माइनस 1 क्या आ गया, -1/2, क्या आ गया, -1/2, और वो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 1/2 इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, लिख लो बेटा, ठीक है। ये 1/2 क्या -1 क्या बन गया, -1/2, और जो वो -1/2 डिनोमिनेटर में क्या बन गया, +1/2 इनटू इसका क्या हो जाएगा आंसर, आर इज कांस्टेंट, उसका आंसर है 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका फिर वो लगाइए यू की पावर n, तो ये आ गया 2 एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के 2 - 1 इंटू
कितना आया n का मींस 1 into m ओमेगा स्क्वायर का कितना आया 2m ओमेगा, यही आया। यही आया ना, बिल्कुल सही आया, ठीक है। और ये 2 into 2 कितना आ गया, तो आगे कीजिए, ये 2 into 2 कितना आ गया 4 आ गया, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 m ओमेगा स्क्वायर माइनस k, ठीक है ना, मैं डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर माइनस k होल स्क्वायर की पावर 1 by 2 and that is equal to 0 also, sorry, ओके। हाँ जी, 2 कॉमन लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा r स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर माइनस k डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर की पावर 1 बाय 2, या फिर 2 कॉमन लिया 1 आ गया या 2 आ गया, 2 कैंसिल हो गया, एंड आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ओके। Now I will take omega is common. I will take omega as a common. For getting omega square plus 2m omega square minus k is equal to 0. So यहाँ से मुझे मिलेगा this implies r square plus 2m omega square minus k is equal to 0 because omega is equal to 0 is a trivial solution, वो हमें नहीं चाहिए, ओके। दो क्वेश्चन बन गई, आइदर ओमेगा इज इक्वल टू 0 और दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 0, r स्क्वायर प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर m माइनस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरे पास क्या निकला, इसको खोलिए, एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, हाँ जी, क्या आया, r स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2m k इज इक्वल टू 0, ओके। सो हम गेटिंग 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k माइनस r स्क्वायर, ओके। फ्रॉम हियर आई विल गेटिंग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k माइनस r स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर। So I'm getting 2m k minus 2m square minus r square by 2m square. 2 cancel and m cancel, so I'm getting a k by m minus r square by 2m. Okay. Okay. So it means this is omega square. So omega square is equal to k by m minus r square by 2m square. So omega is equal to, taking square to both sides, k by m minus r by square by 2m square power 1 by 2. And out. And let us say this is equal to omega prime c. This is equal to, instead of writing this, instead of writing this very large number, I will use the another notation omega prime. Okay. So what is omega prime? So what is omega prime? Omega prime is equal to k by m minus r square by 2m square 1 by. Okay.
is this k by m? This k by m is called omega square. It's called omega square. Okay, line right here. This k by m is called omega naught. Omega naught square. And what is this? What is b? B is equal to r by 2m. B is equal to r by 2m. R by 2m. B by 2. Okay. I want r square by 2m square. What I will do? What I will do? What I will do? First of all, squaring both sides. Squaring both sides. B square is equal to r square by 4m square. Now multiply to both sides. 2b square is equal to 2r square by 4m square. This will cancel. So it means 2b square is equal to 2b square is equal to r square by 2m. Okay. So it means I can replace r square by 12 square by 2b square. By r 2b square. ज़्यादा समझ आई कि नहीं आई? पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर के बाद हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन क्या बन गई फिर? ओमेगा प्राइम क्या बन गया? ये बन गया, ये तो बन गया। इसको नंबर दीजिए, इस क्वेश्चन को नंबर दीजिए। कितना नंबर देंगे? लास्ट चल रहा है। अच्छा ये नया 1, ये 2, ये 3। Using 2 and 3 in 1. Using 2 and 3 in 1. कीजिए ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस क्या बन गया 2b स्क्वायर माइनस क्या बन गया 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर पावर पूरे का 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बॉक्स में 4। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ओमेगा प्राइम है ये ओमेगा नॉट से क्या हुआ? कम हुआ। क्योंकि अगर इसमें से कोई माइनस जाएगा तो इसका मतलब ये भी इससे माइनस ही होगा ना फिर। आई गेट योर पॉइंट? समझ आई कि नहीं आई? समझ आई? जैसे मैं आपको कहूं 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 4। 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 10 माइनस 4। इसका मतलब क्या है? ये 6 तो कम ही होना ना इससे। आई गेट योर पॉइंट? इफ आई एम सेइंग 6 is equal to 10 minus 4, what does this mean? This 6 is less than 10। उसी तरह से ये क्या है हमारा ओमेगा प्राइम, ये क्या है हमारा ओमेगा, और ये क्या है हमारा 2b स्क्वायर। ये हमारा क्या है 2b स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन होल्ड हो रही है, इसका 6 क्या होगा 10 से कम होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या बताती है? इक्वेशन 4 shows that ओमेगा प्राइम इज लेस देन ओमेगा। और ओमेगा नॉट क्या है? व्हाट इज ओमेगा नॉट? ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा प्राइम क्या हमारी? ओमेगा प्राइम क्या? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा प्राइम इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो लिखिए ओमेगा प्राइम इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा प्राइम इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो लिखिए। तो इसका मतलब ये ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब जो रेजोनेंस है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे आती है। आज लगेगा पॉइंट? रेजोनेंस कब होती है? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या हो? कम हो। ओके, तो प्लीज राइट frequency omega prime is called resonance frequency, and omega naught is called natural frequency of a undamped oscillator, This shows that this write a line. This shows that peak value of amplitude occurs. Peak value of amplitude. Peak value means maximum value. Peak value means maximum value. This shows that peak value or maximum value. This shows that peak value or maximum value of amplitude occurs when
when this condition holds. Repeat. See, what is this is omega prime. What is omega prime? This is the resonance frequency. What is omega naught? This is natural frequency. And see, we want the amplitude to be maximum. And when the amplitude will be maximum, amplitude कब maximum होगा? जब रेजोनेंस होगी. जब क्या होगी? रेजोनेंस होगी. और रेजोनेंस कब होती है? इस फ्रीक्वेंसी पे होती है. ओमेगा प्राइम. गेटिंग योर पॉइंट. तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? जब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी. और वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या होती है? कम होती है. क्या होती है? कम. ये लिखना है. तो प्लीज राइट, the peak value of amplitude occurs at a frequency less than the natural frequency of a undamped oscillator. So the frequency omega prime is called resonance frequency. So this omega prime is called resonance frequency, and the oscillation occurs at this frequency is called resonant vibrations. It's called resonant oscillations. अगर कोई आपसे पूछता है वन वर्ड में व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, तो आप क्या बताओगे? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? ज्योतिष कुमार, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. क्या होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ओके, जब ग्राफ ऐसा दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम. दिस इज कॉल्ड अगर ये एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा है इस फ्रीक्वेंसी पे, तो ये ओमेगा प्राइम फ्रीक्वेंसी है. ओमेगा प्राइम फ्रीक्वेंसी पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या आता है बेटा? मैक्सिमम. क्या आता है? तो इसको बोलते हैं दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस. दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस. ओके, so I think this is all about the article, and this is all about the unit also. So this is the completion of the unit also. So tomorrow we will do some new topic, some new unit. Thank you for being with us. If you have any kind of doubt, then you can ask me. अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं. तो ये था हमारा रेजोनेंस पार्ट. ओके, और ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है. डिस्कस दी रेजोनेंस कंडीशन. या 2 मार्क्स में भी कंडीशन आता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस मींस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. द फ्रीक्वेंसी, what's the answer? The frequency corresponding to which the amplitude becomes maximum is called resonance, and that frequency is called resonance frequency. That frequency is called your question ऐसे भी आ सकता है. What do you mean by resonance frequency? तो आंसर क्या होगा? Resonance frequency is the frequency at which the amplitude becomes maximum. So so this frequency is called resonance. Any doubt? You can ask. सर, इसका बेस में न्यूमेरिकल सुने आएगा ना? जी. सर, इसका बेस में न्यूमेरिकल सुने आएगा. न्यूमेरिकल्स भी हम आपको करवाएंगे. आपको अपना एज असाइनमेंट दे देंगे, और जब लैब में जाएंगे तब आपको करवा देंगे. ठीक है. न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेजोनेंस की कंडीशन इज इंपॉर्टेंट है. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू.